بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی محترم و مکرم ناظرین، ہم اپنے وعدے کے مطابق آج آپ حضرات کی خدمت میں 17ویں تراویح کا خلاصہ مکمل 21ویں پارہ کا خلاصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. 21ویں پارے میں ابتداء سورہ عنکبوت کا یہ حصہ ہے، اس کے بعد سورہ روم ہے، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اس کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ سورہ تنزیل ہے، اس کے بعد سورہ احزاب ہے. ان تمام سورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات، کچھ نصائح، کچھ عبر، کچھ واقعات اور خصوصاً خصوصاً اس میں متبنہ یعنی لیپالت کے احکام اور اسی طریقے سے زہار کا بھی ایک مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. 21ویں پارے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب مقدس کی آپ تلاوت کیجئے جس کا آپ پر نزول ہوا ہے، جس کو بذریعہ وحی آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، آپ اس کو پڑھیے. وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نماز کا پابند دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ نماز کا اہتمام کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ اللہ سے لو لگانے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ اللہ کے آگے سر بسجود ہونے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام ساری رات کبھی رکوع میں گزارتے، کبھی سجود میں گزارتے، کبھی قیام میں گزارتے، کبھی تلاوت میں گزارتے. ناظرین، اس ہستی سے اللہ رب العزت نماز کی پابندی کرنے کا حکم جو دے رہے ہیں، وہ اس ہستی کو حکم دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کی امت میں سے آنے والے ان غافلین کے لیے، ان تارکین صلاۃ کے لیے، نماز کو معمولی آزار اور معمولی بہانوں کی وجہ سے چھوڑ دینے والوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو پیغام دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو بتلانے کے لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا حبیب، میرا پیارا، میرا دلارا، جس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہوئے، اس کے باوجود میں اس حبیب کو نماز کی پابندی کرنے کا، نماز کے قائم کرنے کا، نماز کے ادا کرنے کا حکم دے سکتا ہوں. تو میرے اور ہمارے جیسے جو لوگ معمولی باتیں سے نماز چھوڑنے والے، ان کے لیے یہ حکم میں کس درجے کی تاکید ہوگی، کس درجے کی اہمیت ہوگی. اور یہ حکم کس اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 700 سے زائد مقامات پر مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں، مختلف مواقع سے نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. نماز سے اعراض اور غفلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت، یعنی کہ بعض ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز میں غفلت برتنے والے ہیں، جو اپنی نماز میں بے توجہ سے رہنے والے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
मुनाफिकीन की सिफत जो बयान की है, नमाज के लिए ठहरे तो सुस्ती और गफलत की हालत में। फिर इस तरीके से फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है, बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए, उन नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में गफलत बरतने वाले, बेतवज्जो से पढ़ने वाले, बगैर खुशू व खुजू के पढ़ने वाले, नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज में खुशू नहीं, उनके लिए भी कुरान मुक़द्दस ने हलाकत और बर्बादी की दुआ, हलाकत और बर्बादी का जिक्र कुरान मुक़द्दस में है। तो जो लोग सरे से नमाज ही छोड़ते हैं उनका क्या होगा? वो लोग क्यों कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफाअत की उम्मीद रखेंगे, जबकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से, दारे फानी से दारे बका की तरफ रहलत फरमा रहे हैं। आपके इंतकाल की घड़ियां हैं, आपके वक़ाफ का इंतकाल का वक्त है। आज हम में से किसी का इंतकाल हो, किसी मालदार का, किसी शेर साहब का, किसी दुनियादार का, तो मरते वक्त ये माल उसको दो, वो माल इसको दो, ये बेटे को ये प्रॉपर्टी दो, वो बेटे को वो प्रॉपर्टी दो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो रहा है तो प्यारे आका की जबान पर दो अल्फाज है, अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो और अपने मातहतों के बारे में, उनकी हुकूक की अदायगी में अल्लाह से डरते रहो। नाज़रीन, हमें इन आयात से, इन अहादीस से नमाज की अहमियत, नमाज की अजमत और नमाज की पाबंदी का सबक मिलता है। लिहाजा हमें चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, किसी हाल में नमाज छोड़ें। रिवायतों में आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर वक्त है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पैरों के बल चल नहीं सकते हैं। हजरत अब्बास और किसी एक सहाबी, दो सहाबी के सहारे से पैर घिसट कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ुल वफ़ात में नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, मस्जिद नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील कर रहे हैं, अहकामात की तामील कर रहे हैं। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका, रब के दुलारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आका जिनके बारे में अल्लाह ने स्टेटमेंट दे दिया, जिनके बारे में अल्लाह ने बयान फरमा दिया, अल्लाह ने फरमा दिया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह के बारे में सोचना हराम है, गुनाह कबीरा है, हमारा ईमान खतरे में पड़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर बफर्ज़े मआल मेरे अमीर से कोई गुनाह भूल चूक से हो सकता हो, हुआ नहीं, होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हो सकता हो तो उसे भी मेरे रब ने माफ कर दिया है। वो हस्ती अपने आखिर लम्हात में, बीमारी का वो आलम है, 63 साल की उम्र है, पैर घसीट कर दो लोगों के कंधों पर लोड डालकर, अपना वजन डालकर, दो आदमियों को सहारा बनाकर मस्जिद नबवी में अपने एक सहाबी के पीछे, अपने एक गुलाम के पीछे आखिर वक्त में भी नमाज को नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमें क्या जवाब बनता है कि मामूली उज़रों की वजह से, मीठी नींद के बहानों की वजह से और अपने दुनियावी झमेलों की वजह से, कारोबार की फुटी कौड़ियों की वजह से, बीवी बच्चों की छोड़े से, हंसी मजाक के माहौल की वजह से, हम छोटी छोटी बातों की वजह से फर्ज नमाजों को गफलत की नजर कर देते। मेरे भाई, अल्लाह हम सब की इबादत फरमाए, अल्लाह हमें सच्चा पक्का नमाज़ी बनाए, 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ, एहतिमाम के साथ अदा करने वाला बनाए। खुदारा नमाज के मामले में गफलत ना बरते, वरना कल क़यामत के दिन हम न अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक नहीं, न रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के लायक नहीं। इसलिए हम लोग अपने आप को नमाजों का आदी बनाए, अपने आप में 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम करें, तहज्जुद का एहतिमाम करें, इशराक का एहतिमाम करें, चाश का एहतिमाम करें, सारी नमाजों के एहतिमाम से अदा करें। इंशाअल्लाह हम कामयाब और सुरखुर होंगे। नाज़रीन, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मुशरिकीन की, अहले किताब की बदमाशियाँ, उनकी हरदर्मियाँ, फिर उनके साथ किस तरीके से मुबासा हो उसको बयान किए। फिर उसके बाद अल्लाह कहते हैं या इबादिल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्दी वासिया फ़इय्या फ़अबुदून, ऐ मेरे बंदो, मेरी पूरी सरजमीन बहुत बड़ी है, बड़ी है, उसमें फिरो, गौर करो, मेरी कुदरत को देखो, मुझे पहचानो और मेरी इबादत करो, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम में से हर शख्स को मरना है, मरकर मेरे पास आना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि तुम सबको मरना है, मरकर मेरे पास आना है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहे वले इंसान मन खलक़, मुशरिकीन मक्का की हरदर्मी, काफिरों की बदमाशी को अल्लाह कहे कि आप उनसे पूछो कि आसमानों को, चांद सूरज को और सूरज की रोशनी को, सारी चीज़ों को किसने पैदा किया? तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन उनकी हरदर्मी, उनका कमीनापन, उनकी बदमाशी है, फिर भी वो नहीं मानते। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, कि दुनिया की जिंदगी तो महज खेल कूद का सामान है, गुजर जाने वाली है,
अच्छे में भी, बुरे में भी, खुशी में भी, गमी में भी, सुख में भी, दुख में भी, किसी भी हाल में गुजरने वाली है। कामयाबी असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है और आखिरत की फिक्र करने वाले ही कामयाब है। फिर उसके बाद जो लोग कुरान पर, अल्लाह के रसूल पर बहतान करते थे, तोहमतें लगाते थे और बेखुदा बातें करते थे, उन लोगों की मजम्मत बयान की गई है। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों की मेहनत को, कोशिश करने वालों की कोशिश को ज़ाया नहीं करते, उसका पूरा बदला दोनों जहान में अता फरमाते हैं और उनको कामयाब और सुरखुरू बनाते हैं, महरूमी से बचाते हैं। मेहनत करने वालों के लिए मेहनत शर्त है कामयाबी के लिए। मेहनत करने वाला ही कामयाब होता है, मेहनत करने वाला ही सुरखुरू होता है, मेहनत करने वाला ही अपनी मुराद पाता है, मेहनत करने वाला ही मंजिल मकसूद को पहुंचता है। और ऐसे जो होता है वो ना कुछ कर सकता और ना उससे कुछ हो सकता और ना ही वो अपने मुरादें और अपने सपने, अपने ख्वाब, अपने ड्रीम्स और जो सोचता है वो नहीं मिलता। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि एक शख्स मर रहा था, चिल्ला रहा था, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सारा गांव, सारी बस्ती, सारा मोहल्ला उसके इर्द गिर्द जमा हुआ। कहने लगे क्या हुआ भाई साहब, क्यों मर रहे हैं, क्या हुआ? कहता है कि मुझे पानी की प्यास लगी है शिद्दत से। तो लोगों ने कहा कि भाई बाजू में खड़ा है, लेके पी लेते, वही गिलास है। तो मुझसे वही नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई बस हमारे माशरे में ऐसे भी ऐदी पाए जाते हैं, सुस्ती से, गफलत से, ऐदीपन से। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल अज़्नी वल अज्ज़ी वल कस्ल। कस्ल का तर्जुमा सुस्त, काहिल, गाफिल, ऐदी। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ, ऐ अल्लाह आप मुझे बचा लीजिए। किससे? हम, हर तरह की परेशानी से। मिनल हम्मी वल हुज़्न वल अज़्म और गम से, वल अज्ज़ आजिज़ और बेबस, वल कस्ल और सुस्ती और गफलत से, बुस्सिलिस वल जुब्न और बुस्सिलिस। ये दुआ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, हमें पढ़ना चाहिए। खैर मेहनत करने वालों के लिए मैदान है और ऐदियों की तो तारीख है कि इनसे ना कुछ हुआ ना ही कर सकेंगे। उसके बाद सूरह रूम है। सूरह रूम का भी एक पस मंजर है, शान नुज़ूल है। जिस तरीके से अहले रूम यानी कि ईसाई हजरात, ये लोगों का भी एक ज़माने में गलबा था, तो उसके बाद तो मगलूब भी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको गलबा दिया, फिर इस्लाम के बाद उनकी शिकस्त हुई थी, इस्लाम की फतह हुई। फिर अल्लाह ने अहले रूम से जो वादा किया था, उनके मगलूब होने के बाद उनको गालिब कर दिया। उसका मुकम्मल वाक़या, एक मुकम्मल किस्सा, तफसीली रिवायत है। इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी एक मुस्तकिल वीडियो हम किसी वक्त आपके सामने पेश करेंगे। एक बहुत बेहतरीन वो एक महज़ है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को बयान किया है। कुदरत में जिस तरीके से वल्लज़ी खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे जोड़े पैदा किए, मर्दों के लिए औरतें पैदा की, औरतों के लिए मर्द पैदा किए। क्यों? ताकि तुम उनके पास जाके सुकून पाओ। मेरे भाई आप यकीन कीजिए, दुनिया में बाज़ ऐसे होते हैं जिनके पास उनके शोहरों को जाकर उन्हें कभी सुकून नहीं मिलता, बल्कि उनको मिला हुआ सुकून भी बर्बाद हो जाता है। और दुनिया में बाज़ मर्द भी ऐसे हैं कि उनकी बीवियों को उनके पास उनको सुकून नहीं मिलता, बल्कि बेचैनी, दिली तकलीफ और एक अपने घर को वो जन्नत के बजाय एक जहन्नम का हिस्सा महसूस करती हैं। अल्लाह ने जोड़ा बनाया है सुकून के उसूल के लिए, लेकिन हम ये सुकून को बर्बाद करके जिंदगी गुजार रहे हैं। आपस में एक दूसरे को समझने वाले बने, एक दूसरे के मिजाज को समझने वाले बने, एक दूसरे के हुकूक को अदा करने वाले बने। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उससे बड़ा रिश्ता कोई भी नहीं है। माँ बाप का रिश्ता सबसे मुकद्दस तरीन रिश्ता है, लेकिन सबसे अजीम तरीन जो रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। इस रिश्ते को समझें और इस रिश्ते के मुताल्लिका हुकूक को अदा करें, बाहमी ताल्लुकात को निभाएं। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में सूरह बकरा में फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अरे तुम्हारी बीवियां तुम्हारा कपड़ा है और तुम उनका कपड़ा हो। क्या कोई अपने कपड़े को गंदगी लगने पर, दाग लगने पर, धब्बा लगने पर उसको आश्कारा करता फिरता है? लोगों के सामने उसकी नुमाइश करता फिरता है? उसको दिखाते फिरता है? क्या उसको साफ करता है? क्या उसको खत्म करता है? क्या उसके साथ में उस डब्बे को खत्म करके एक अच्छी खुशबू इस्तेमाल करने का एक ज़ौक़ इंसान की तबीयत में होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रिश्ते को समझने का रिश्ता बनाया है।
इस रिश्ते को निभाने का रिश्ता बनाया है। इस रिश्ते को शैतान रोजाना रात में सतह समंदर पर अपना तख्त लगाता है। उसके पास रोजाना उसके चेले रात दिन से लेकर रात तक की कारगुजारी लेकर हाजिर होते हैं। कोई क्या, कोई कहता है कि मैं फुला वली को इबादत से गाफिल करके आया, कोई कहता है कि मैं फुला बस्ती में जंग लड़वा कर आया, कोई कहता है कि मैं किसी का कत्ल करा कर आया, कोई कहता है कि मैं जिना करा कर आया। एक बदमाश पीछे बैठा हुआ रहता, उन कुछ भी नहीं बोलता, तो आका इब्लीस कहता है कि तू क्यों खामोश बैठा, तू क्या कह रहा? उन्होंने बोलता है ये लोग इतने बड़े बड़े करके आए, ये करा वो करा वो करा वो करा, मैं क्या करा? कुछ भी नहीं करा, खाली एक मियाँ और बीवी में लड़े लगा करा, में एकदम चल रही थी। खुशी से नाचने लगता है वो शैतानों का सरदार। आजा आजा मेरे चेले, तू ही तो है जो कुछ काम करके आया, बाकी तो सब बेकार है। मेरे भाई, मियाँ बीवी के नफरतों से, मियाँ बीवी की आपसी दुश्मनियों से, मियाँ बीवी के इख्तिलाफात से रहमान को, अल्लाह को दर्द और तकलीफ होती है और शैतान को खुशी मिलती है। तो क्या हम आपस के लड़ाई झगड़े से, आपसी निज़ा से, आपस के नक्स मुबासे से क्या हम रहमान को नाराज करके शैतान को खुश करें? अगर ऐसा है तो बीवियां अपने शोहरों को मनाएं, बीवियां अपने शोहरों के हुकूक को अदा करें, अपने हुकूक का मुतालबा ना करें, वो खुद उनके हुकूक अदा करेंगे। शोहर अपनी बीवियों को मनाएं, उनके अगर अपनी जात से उन्हें तकलीफ हुई है तो उनसे माफी चाहें और उनके हुकूक को अदा करें उनसे, यानी कि हुकूक के मुतालबे से बाहमी लड़ाई और नज़ा की हालत बन जाती है। हुकूक की अदायगी से बाहमी निज़ा और लड़ाई झगड़े की कैफियत खत्म होती है। जानिबैन मियाँ बीवी दोनों में से हर एक ही कोशिश करे कि वो अपने एक दूसरे के हुकूक को अदा करे, तो इंशाअल्लाह ये नफरतें, ये अदावतें, ये दुश्मनियाँ सब खत्म हो जाएंगी। एक खुशगवार माहौल बनेगा। घर जन्नत कैसे बने, हज़रत पीर साहब दामद बरकातुहू की किताब है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। घर जन्नत कैसे बने, हज़रत मौलाना सलाउद्दीन सैफी नक्शबंदी दामद बरकातुहू ने पीर साहब की बयानात को इस किताब में बेहतरीन अंदाज में जमा किया है। हर किसी को पढ़ना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए। घरेलू झगड़ों का एक बेहतरीन हल ये किताब साबित हो सकती है। नाज़रीन, अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियों में से इस रिश्ते को भी एक निशानी बयान किया है और निकाह का, जोड़े का मकसद ही अल्लाह ने ये बयान किया है कि एक दूसरे को सुकून मिलना। बीवी ऐसी बीवी बने कि उसके शोहर को उसके पास सुकून मिले, शोहर ऐसा शोहर बने कि उसकी बीवी को उसके बाहों में, उसके पहलू में आकर सुकून मिले। सारी तकलीफें, सारे गम, सारी मुसीबतें, सारे दर्द वो शोहर के पास आकर भूल जाए। नीस बाहर से शोहर घर में आने के बाद बीवी की एक मुस्कान को देखकर शोहर के सारे गम, सारे टेंशन, सारे डिप्रेशन, सारे प्रॉब्लम्स और सारी परेशानियां बीवी की एक मुस्कान को देखकर खत्म हो जाए। वैसी बीवी बने, वैसा शोहर बने, तो हमारा माशरा कामयाब हो। खैर, मैं कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रिश्ते को अपनी कुदरत की निशानी बनाया है। फिर इस तरीके से देखिए, हिंदुस्तान एक मुल्क है, इस मुल्क में काले हैं, गोरे हैं, दरमियाने हैं, लंबे हैं, बीटे हैं, मयाने हैं, और किसी की ज़बान तेलुगु है, किसी की ज़बान कन्नड़ा है, किसी की ज़बान मलयालम है, किसी की ज़बान मराठी है। ये तुम्हारी ज़बानों का अलग होना, तुम्हारा रंगों का अलग होना, तुम्हारा रूपों का अलग होना, तुम्हारे तहजीब, कल्चर, सकाफत का, सब चीज़ों का अलग होना, ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ही है। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने आसमानों का बगैर सुतून के कायम होना, ज़मीन का अरीज़ सबील होना, ये सारी चीज़ों को भी अपने कुदरत की निशानियों में से बयान किया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपनी रहमत की तरफ मुतवज्जह होने और उसको गौर करके हासिल करने का हुक्म दिया है। फिर अहले बातिल की बदमाशियों को, फिर किस तरीके से वो लोग अक़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, उसको बयान किए। उसके बाद सूरह रूम का इख्तिताम है। सूरह लुक़मान के आगाज़ अल्लाह ताला ने उमूमन तकरीबन कुरान मुक़द्दस की हुरूफ़ मुक़त्तआत वाली जो सूरतें हैं उनके सबके आगाज़ एक जैसे ही, अलिफ लाम मीम तिल्क आयातुल किताब, अलिफ लाम मीम तिल्क आयातुल किताब। लेकिन इस तरीके से हर सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी किताब की आयतों को बयान किया है, उसकी हिकमत को बयान किया है। सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम एक अजीम हस्ती है और अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रब बंदे हैं। वली और नबी होने के सिलसिले में इख्तिलाफ है। उनके बारे में आता है, तफसीरी रिवायतों में लिखा है कि वो अपने जेब में
राई के दानों की थैलियां रख के घूमते थे, अपने बेटे को नसीहत करते थे, भली बात की भी नसीहत करते थे, बुरी बात से भी रोकते थे। जब किसी अपने बेटे को भली बात का हुक्म करते तो सीधे हाथ वाली जो थैली में राई होती थी उसमें से एक राई डाल देते, बुरी बात से रोकते तो बाएं हाथ वाली थैली से एक राई निकाल कर डाल देते। ऐसे कई ये थैलियां उनकी खत्म हो गई। अरब हजरात के पास हिकमुल लुक़मान, मवाइज़ुल लुक़मान, इस तरीके की डायरियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिआसत से पहले भी हज़रत लुक़मान की हिकमत भरी बातें, उनकी हिकमत भरी मौइज़त भरी नसीहतों को लोग लेकर फिरते थे। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने बहुत प्यारी प्यारी, बहुत बेहतरीन नसीहतें अपने बेटे को की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन नसीहतों को, उन बातों को कुरान मुक़द्दस का हिस्सा बनाया है। कहते हैं या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक मत ठहराना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अरबी ज़बान में वज़ू शै की गैर महल्ली जुल्म, किसी चीज़ को उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह रखना, यही जुल्म है। तो अल्लाह के अलावा अल्लाह के किसी और मखलूक को अल्लाह के बराबर माबूद करार देना, ये शिर्क है और ये सबसे बड़ा जुल्म है। इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। अनिश्कुर ली वली वालिदैक। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर मेरे उन नौजवान भाइयों से और मेरी उन नौजवान बहनों से इस आयत के रोशनी में एक नसीहत और एक नुक्ता बयान कर रहा हूँ। मैं इसको अपने मुट्ठी में मजबूती से पकड़ लें। मेरी बहनें अपने पल्लों से उसको मजबूती से बांध लेंगे। हम छोटी छोटी बात को माँ बाप को झिड़कियाँ देते हैं, माँ बाप को तकलीफ देते हैं, माँ बाप के दिलों को ठेस पहुँचाते हैं। माँ बाप ने किन मसाइब के साथ, किन मशक्क़तों के साथ हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं होगा। नाज़रीन, मैंने इस पर मुस्तकिल एक ने 2 वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कराए हैं, आप इस पर देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। नाज़रीन, अल्लाह कह रहे हैं निश्कुर ली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तू मेरा और अपने माँ बाप का शुक्र बजा ला, शुक्र अदा कर। अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह अपने ज़ात में किसी को शरीक करने से मना करने के बाद अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक का हुक्म 15वें पारे की तरावी में मैं आपके सामने पेश किया था। वो क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, उस आयत के साथ इस आयत का जोड़ है। फिर एक मरतबा मैं उन नौजवान भाइयों और बहनों से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, खुदारा अपने वालिदैन को तकलीफ ना दे, अपने वालिदैन के दिलों को ठेस ना पहुँचाएं। ये एक अनमोल हीरा है, ये एक अनमोल मोती है। ये जब तक है कदर कर लो, इनके जाने के बाद मारे मारे फिरोगे, तड़पोगे, सिसकोगे, बिलकोगे, इनकी एक छाई को देखने के लिए तड़पोगे, लेकिन ये तुम्हें देखने मिलने के नहीं। नायाब है, इस तरीके से चले जाएंगे तो तरस जाओगे ख्वाबों में देखने के लिए। जिनके वालिदैन नहीं है ना, उनसे पूछ लेना। जिसका बाप नहीं है ना, उससे पूछ लेना। जिसकी माँ नहीं है ना, उससे पूछ लेना कि उसके दिल की हालत क्या है। वो बाप के लिए उसका दिल किस तरीके से तड़पता है, माँ के लिए उसका दिल किस तरीके से धड़कता है। उनसे पूछिए मेरे भाई और बहनों, खुदारा अपने माँ बाप की कदर करो, उनके दिल मत दुखाओ, उनके दिल मत तोड़ो। काबे को तोड़ने से बड़ा गुनाह इंसान का दिल तोड़ना है। माँ बाप के दिल तोड़ने का गुनाह कितना होगा आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। माँ बाप का दिल और इसकी सजा को तो मैंने बयान कर दिया है हज़रात के सामने। यहाँ पर अल्लाह का हुक्म आपके सामने रखकर हाथ जोड़ कर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप के जज्बात की कदर करो। अपने माँ बाप को ऊंची आवाज में अपने माँ बाप से बात मत करो, निगाहें उठाकर उन्हें ना देखो उनके सामने। मेरे भाई, इतनी बारीक नस थी, एक उंगली से नस दबाते तो मर जाते। ये दिन ना देखते, सब कुछ अपना उसने आप पर लौटा दिया। आज तुम जिसने मीठे बोल आपको बोलने सिखाए, उसी पर अपनी कड़वी ज़बान इस्तेमाल करते हो। जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तुम आज उसी को धक्के मारते हो। खुदारा इनसे बाज आए। अल्लाह कहते हैं निश्कुर ली वली वालिदैक, तुम मेरा और अपने माँ बाप का शुक्र करो। इलैयल मसीर, अल्लाह कह रहे हैं कि याद रखना, मेरे बोलने के बाद भी, मेरे समझाने के बाद भी, मेरे हुक्म देने के बाद भी अगर तुम नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, तो इसका इलैयल मसीर का 2 मतलब है। एक तो यह है कि अल्लाह की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, दूसरे वही दौर तुम पर भी लौट कर आना है।
اس کے بعد اللہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، بھلی باتوں کا حکم کر، بری باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھ، وقت مشیق، نرمی سے، میانہ روی سے، صفت اعتدال سے، اہتمام سے، آہستہ سے چلو، سینہ تنا کر مت چل، اکڑ کر اترا کر مت چل، وقت مشیق، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی لینے پر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین اور گھٹیا ترین آواز جو ہے یہ دیکھیے، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، لوگوں سے اکڑ کر اترا کر اپنا چہرہ پھیلا پھیلا کر منہ بنا بنا کر بات مت کرو، اس طریقے کے اکڑنے والوں کو، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ لقمان میں اور بھی اللہ نے اپنی قدرت کی بہت ساری حکمتیں بیان، انشاءاللہ میں ایک مستقل ایک کلپ سورہ لقمان پہ ریکارڈ کراؤں گا، تو انشاءاللہ اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے اور بھی تفصیل سے آئیں گی، وقت کی قلت کی وجہ سے اختصار سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک اور 5 باتوں کو بیان کیا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر، بے شک قیامت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کیسے آئے گی، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ کچھ لوگ سوال کرے تھے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب، کتنی، کہاں، کیسے، فائدے کی، نقصان کی ہوگی، وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی اللہ ہے۔ آج کل لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ سونوگرافی، الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہو رہا کیا بیٹا ہے بیٹی ہے 4 مہینے کے بعد۔ بیٹا بیٹی تو معلوم کر سکتے ہیں، خیر ہے، شر ہے، خبیث ہے، طیب ہے، یہ نہیں معلوم کر سکتے، یہ تو میرے رب کے علم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کون کیا کمانے والا ہے، کہاں سے کمانے والا ہے، کیا روزی ملنے والی، کس کو ملنے والی، کیسی ملنے والی، روزی کے متعلق بھی علم اللہ کو ہی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کون کب کہاں کیسی حالت میں مرنے والا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے اپنی اچھی موت اور اچھے انجام کو اللہ سے مانگے۔ پھر اس کے بعد ناظرین سورہ احزاب، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی منظر کشی اور قیامت کے حالات کو، قیامت میں مشرکین، منافقین، نافرمان لوگ کہیں گے ربنا وسطنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، مان بھی لیا، اب ایک مرتبہ موقع دے، جائیں گے سدھر کر بہت اچھے دودھ کے دھلے ہوئے بن کر آئیں گے، اچھی زندگی گزار کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَا تَذَكَّرُوا فِيمَا تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ، تمہارے پاس نصیحت کرنے والے بھی آئے، کتاب بھی آئے، رسول بھی آئے، اللہ کے نیک باتیں سمجھانے والے، اس کے باوجود بھی تم نہیں مانے، نہیں سمجھے، اب تمہارے کوئی موقع ملنے والا نہیں، فَذُوقُوا، تم جہنم کے عذاب کو چکھتے رہو۔ پھر اس میں اور بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر طور پر آیا، پھر اس کے بعد سورہ احزاب کا آغاز ہے۔ سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار احکامات ہیں، انشاءاللہ ہم کل کی تراویح میں آج کے حصے کو لے کر آئیں گے، وقت کی قلت کی وجہ سے انہیں چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔